Question 1. Which of the following is not a fundamental right under the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस है A. Right to equality, B. Right to freedom, C. Right against exploitation, D. Right to property. सही उत्तर है ऑप्शन D. Right to property. Question 2. The directive principles of state policy are borrowed from which country's constitution? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? ऑप्शंस है A. USA, B. Ireland, C. Canada, D. Australia. सही उत्तर है ऑप्शन B. Ireland. Question 3. How many types of emergencies are envisaged by the Constitution of India? भारतीय संविधान में कितनों प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? ऑप्शंस है A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. सही उत्तर है ऑप्शन B. 3. Question 4. Which constitutional body is responsible for the appointment of the Chief Election Commissioner of India? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? ऑप्शंस है A. Prime Minister, B. President, C. Supreme Court, D. Parliament. सही उत्तर है ऑप्शन B. President. Question 5. Which article of the Indian Constitution grants special status to the state of Jammu and Kashmir? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शंस है A. Article 356, B. Article 370, C. Article 368, D. Article 395. सही उत्तर है ऑप्शन B. Article 370. Questions 6. Who among the following is known as the father of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ऑप्शंस है A. जवाहरलाल नेहरू, B. B.R. अम्बेडकर, C. राजेंद्र प्रसाद, D. सरदार पटेल. सही उत्तर है ऑप्शन B. B.R. अम्बेडकर. Questions 7. Which part of the Indian Constitution deals with the Union and its territory? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं A. Part 1, B. Part 2, C. Part 3, D. Part 4. सही उत्तर है ऑप्शन A. Part 1. Questions 8. Who is the executive head of the state government in India? भारत में राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन है? ऑप्शन है A. Chief Minister, B. Governor, C. Chief Justice, D. Speaker. सही उत्तर है ऑप्शन B. Governor. Questions 9. Which article of the Indian Constitution provides for the appointment of the Attorney General? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन है A. Article 76, B. Article 74, C. Article 75, D. Article 77. सही उत्तर है ऑप्शन A. Article 76. Questions 10. Who presides over the joint session of both houses of Parliament? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है A. President, B. Vice President, C. Speaker of Lok Sabha, D. Prime Minister. सही उत्तर है ऑप्शन C. Speaker of Lok Sabha. Questions 11. The Right to Information Act was enacted in which year? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है A. 2002, B. 2005, C. 2008, D. 2010. सही उत्तर है ऑप्शन B.
2005. Questions 12. Which of the following writs is issued to release a person who has been unlawfully detained? निम्नलिखित में से कौन सी रिट गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की जाती है? ऑप्शन है ए मैंडमस, बी क्वो वारंटो, सी हेबियस कॉर्पस, डी सर्टियरेरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, habeas corpus. Questions 13. Which of the following is the guardian of the fundamental rights of the citizens of India? निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ऑप्शन है ए पार्लियामेंट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी प्रेसिडेंट, डी इलेक्शन कमीशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। Questions 14. Which article of the Indian Constitution deals with the formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 1, बी आर्टिकल 2, सी आर्टिकल 3, D Article 4. सही उत्तर है option C, Article 3. Questions 15. Who appoints the Chief Justice and other judges of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है A Prime Minister, B President, C Vice President, D Chief Justice of India. सही उत्तर है ऑप्शन बी, President. Question 16. The concept of judicial review in India is borrowed from which country's constitution? भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है ए UK, B USA, C Canada, D Ireland. सही उत्तर है ऑप्शन बी, USA. Question 17. The Parliament of India consists of which of the following? भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन है ए लोकसभा एंड राज्यसभा, बी लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, सी लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। Questions 18. Who among the following was the first woman speaker of the Lok Sabha? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी मीरा कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी सुमित्रा महाजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीरा कुमार। Questions 19. Which amendment of the Constitution of India lowered the voting age from 21 to 18 years? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है ए 61st Amendment, बी 42nd Amendment, सी 44th Amendment, डी 52nd Amendment। सही उत्तर है ऑप्शन ए 61st Amendment. Questions 20. Which of the following is not a constitutional body in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन है ए फाइनेंस कमीशन, बी इलेक्शन कमीशन, सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। Questions 21. The President of India can proclaim a national emergency on the grounds of. भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन है ए war, external aggression, C armed rebellion, D all of the above. सही उत्तर है ऑप्शन डी, all of the above. Questions 22. The concept of the basic structure of the Constitution was introduced in which Supreme Court case?
संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में पेश की गई थी? ऑप्शन है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डी मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। Question 23. The power of judicial review in India is vested with. भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में निहित है। ऑप्शन ए हाई कोर्ट्स ओनली, बी सुप्रीम कोर्ट ओनली, सी बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी both Supreme Court and High Courts. Question 24. Who among the following can participate in the proceedings of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha? निम्नलिखित में से कौन लोक सभा और राज्य सभा दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन है ए स्पीकर ऑफ लोक सभा, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सही उत्तर है ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Question 25. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन है ए 26 January 1950, बी 26 November 1949, सी 15 August 1947, D 26 January 1949। सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 November 1949। Question 26. Which of the following articles deals with the impeachment of the President of India? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 61, सी आर्टिकल 74, डी आर्टिकल 76। सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्टिकल 61। Question 27. Who among the following has the power to extend or restrict the jurisdiction of the high courts? निम्नलिखित में से किसके पास उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति है? ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी स्टेट लेजिस्लेचर। सही उत्तर है ऑप्शन बी पार्लियामेंट। Question 28. The concept of federation with a strong center in India was borrowed from the Constitution. भारत में एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा संविधान से उधार ली गई थी। ऑप्शन है ए कनाडा, बी यूएसए, सी यूके, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए कनाडा। Question 29. Which of the following is the highest law officer in India? निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन है ए Solicitor General, B Advocate General, C Attorney General, D Chief Justice of India। सही उत्तर है ऑप्शन सी Attorney General। Question 30. Which article of the Indian Constitution deals with financial emergency? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 350, बी आर्टिकल 352, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 360। सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्टिकल 360। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।